Hello everyone and welcome back to our channel Char Vichar. After a long break, we all are coming back to voice our unqualified opinions on various topics. The title for today's episode is Trump Tales. That sounds like the title of a cartoon, right? Well, certain geopolitical issues these days are no less loony and caricaturish as cartoons. Can you guys believe that Trump recently sent a threat to Greenland just because he was not offered a Nobel Peace Prize, or the ever seconding Epstein files that were kept on getting sidelined? So, without wasting any more time, let's dive into this legacy. सो गाइस इन द रिसेंट टाइम्स बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ग्लोबली। जैसे कि हम देखें कि जो ट्रम्प ने इन्वेड करा है अभी वेनेजुएला को, या फिर जो भी यूएस टैरिफ्स लगा रहा है ईयू नेशंस पे एंड अदर नेशंस पे भी, तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द वेनेजुएला अटैक दैट वाज लेड बाय ट्रम्प टू कैप्चर देयर प्रेसिडेंट। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? तो पहले बिफोर स्टार्टिंग हम थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं अपने ऑडियंस को कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, उनका नाम था निकोलस मैडुरो, एंड ही वाज अक्यूज कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड बहुत सारे ऐसे रॉन्ग डूइंग्स में इंडल्ज थे, जिसकी वजह से ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने अटैक किया वेनेजुएला पे एंड उन्हें कैप्चर करने के लिए। ऑल्दो वी फील एंड मोस्ट ऑफ अस, मतलब वी ऑल फील कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। वी ऑल फील दैट ये पॉलिटिकल एजेंडा है एंड ये एक्चुअली ऑयल रिजर्व्स की वजह से हुआ है। एंड अटैक हुआ कैसे था कि उन्होंने आई थिंक जो पैलेस है निकोलस मडूरो का जहाँ वो रहता था, वहाँ उन्होंने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे थे एंड वहां से फिर जाके दे पिक्ड हिम अप एंड दे captured him. So this is the basic overview of what happened, and I express my opinion and on behalf of other people as well that we feel that ये political agenda बनाया जा रहा है कि भाई इस वजह से हुआ क्योंकि हमें ड्रग का था, ट्रैफिकिंग का था, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल रीजन जो था ट्रम्प का, इट वाज टू एस्टैब्लिश हिज पावर and to capture the oil reserves. Actually feel the same. It's just a political cover up that Maduro was doing drug trafficking, this and that, but not the main point. It was all about establishing a military base in Venezuela and capturing all the oil. As everyone knows, Venezuela has the biggest reserve of oil in this world, and due to that there were many issues here and there, but the main point here is this attack was done on Venezuela due to oil and nothing else. The whole Maduro was a narcotic drug lord. He had $50 million bounty on head. It's just extra. Main purpose was this only. Yeah, I agree with both Lakshay and Tanmay regarding this. Basically, it has been said कि वहाँ पे बहुत सारे issues हैं, therefore Trump had to intervene and establish a better governance there. But I don't feel that's the case. काफी ऐसी कंट्रीज हैं दैट आर करंटली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड या फिर उनके कोई और इश्यूज हैं, तो इट्स नॉट लाइक यू कैन जस्ट गो देयर, इन्वेड एवरीवेयर, कैप्चर ऑल ऑफ देयर वर्ल्ड लीडर्स एंड जस्ट सेटल देयर प्रॉब्लम्स बाय फोर्स. You only expend your own resources, which I feel would cost more if it was just for revolutionizing that specific country. So unless there is some benefit for you for doing that, you won't indulge in it. So I definitely agree कि it's like Iraq 2.0 कि उन्हें भी oil reserves ही चाहिए जैसे उन्हें पहले चाहिए थे. US is always in hunt for oil reserve. And रही बात इस चीज की, basically Trump also issued, I guess, his notification, a letter or something to Greenland regarding कि they did not offer him the Nobel Peace Prize, which by the way isn't in the hands of the country. It's in hands of a specific, I guess, Swedish council that selects the winner of this Nobel Peace Prize. He is upset that he wasn't given that, and therefore he'll capture Greenland as a result. So I feel that settling these personal vendettas using the tools of bureaucracy isn't exactly a right thing to do, especially for a world leader of his stature. Yeah, just like Anurag mentioned that you cannot invade any country just to take their resources, and it is against the UN policy as well as their own policies as well. लाइक मैंने कहीं तो इसी आर्टिकल में पढ़ा था कि अमेरिका की खुद की पॉलिसी है कि जो उनकी इलेक्टेड पार्टी होती है तो उनको अमेरिकन नेशनल कांग्रेस से जितने भी मेंबर्स हैं उनसे पहले साइन करवाए जाते हैं कि सारे लोग एग्रीड हैं, तभी किसी अदर कंट्री पे हम वॉर
इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर जा सकते हैं या इन्वेड कर सकते हैं, बट ट्रम्प ने ऐसा कुछ नहीं करा। एंड कवर अप करने के लिए ये बोला गया कि जस्ट बिकॉज जो निकोलस माडुरो थे वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। बट अगर हम देखें भी स्टैटिस्टिकली, जो भी स्टैट्स अवेलेबल हैं यूएस में, जो भी ड्रग्स एंड ऑल कोकेन एंड ऑल इम्पोर्ट्स होते हैं उसका मेन सोर्स वेनेजुएला नहीं है। ऑल्दो वेनेजुएला से आते हैं ड्रग्स एंड ऑल, बट उससे ज्यादा भी क्वांटिटी से कई और अदर कंट्रीज से भी आते हैं। बट उनको इन्वेड ना करना एंड ऑन द अदर एंड वेनेजुएला को इन्वेड करना, तो वो दिखता है कि सीधा सीधा तुम बस ऑयल रिजर्व्स लेना चाह रहे हो। एंड हम हिस्टोरिकली भी देखें तो अमेरिका काफी ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि जो वेनेजुएला में ऑयल मिलता है वो कंपैरेटिवली काफी थिक होता है, जिससे कि पेट्रोल, डीजल एंड क्रूड ऑयल्स वगैरह बनाते हैं अमेरिका। अगर एग्जैक्टली माय पॉइंट, अगर उनको इन्वेट करना था, सॉल्व करना था, तो मैक्सिको इन्वेट करते हैं। मैक्सिको में बताते हैं कि मैक्सिको में जस्ट बिसाइड देम है और बिगेस्ट सप्लायर ऑफ Exactly. ड्रग्स इन अमेरिका है वो। उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इमिग्रेशन है, आइस इतनी हो रही, डिपोर्टेशन हो रही है मैक्सिको में, पर उनने मैक्सिको को कुछ नहीं किया। इन थोड़ी दूर कंट्री वैसे जाके सब किया। और ये बता रहे पॉलिटिकल कवर है कि ये ड्रग्स वजह से किया, ये सब वजह से किया है। जा रहे न्यूज चैनल देख लो यूएस के, अभी सब वहां दिखा रहे हैं कि रील्स दिखा रहे हैं, लोग खुश है कि मडुरो को क्या लेके चले गए हैं, लोग खुशियां रो रहे हैं। मतलब सच है, इनको मैं झूठ नहीं बोलता, पर ये सिर्फ कहते हैं मेन पॉइंट नहीं है, ये साइड प्लॉट है कि इनको पूरी ट्रूथ नहीं दिखा रहे हैं कि असली में वेजिटेबल क्या चल रहा है। अब ये मिलिट्री बेस बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इस पे क्या हो रहा है। और या सो मैं और कहना चाहूंगा कि वी ऑल डिस्कस्ड कि मेन एजेंडा कुछ और था, एंड दैट इज करेक्ट एज वेल। बट हमें ये भी देखना चाहिए वेनेजुएला में अंडरलाइंग इश्यूज थे बहुत, लाइक इन्फ्लेशन। ठीक है, 1,000,000%, 10 लाख% ऑफ इन्फ्लेशन इज जस्ट, इट्स, वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यहाँ पे 8-10% होता है, हमें लगता है महंगाई बढ़ गई है। जो यहाँ का 10 लाख% है वो छोड़ो, एंड 8 मिलियन लोग छोड़ के भी गए, दे फ्लेड द कंट्री बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। एंड यूएसए का मुझे एक पॉइंट याद आया जब मलांग ने डिस्क्राइब किया इराक के बारे में, दैट दे हैव डन दिस बिफोर एज वेल। अफगानिस्तान में भी दे हैड 20 years उन्होंने किया था, एंड I forgot, I don't know the reason किस वजह से उन्होंने कैप्चर किया था। They captured Afghanistan for 20 years, and जब वो वहां से गए तो अफगानिस्तान का कंडीशन was much worse after that. तालिबान वापस आ गया, करप्शन दोबारा बढ़ गया, ह्यूमन राइट्स ले लिए गए, लिविंग कंडीशंस वर्स ऑफ हो गई। तो हम अगर वेनेजुएला के साथ भी ऐसा होते हुए देखते हैं इन द फ्यूचर ईयर्स, दैट वुडंट बी अ सरप्राइज। बट इस डिफिकल्ट टाइम में भी वेनेजुएला के लोग हैव शोन देयर सॉलिडारिटी। लाइक एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है, बट ट्रम्प का एक सोशल मीडिया था पोस्ट व्हेन ही पुट यूएस फ्लैग्स ओवर वेनेजुएला, कनाडा एंड आयरलैंड, द बेसिकली द कंट्रीज ही एस्पायर्स टू कैप्चर। ठीक है, एंड उसपे जो वेनेजुएला के सिटीजन्स थे, दे मतलब उन्होंने सोशल मीडिया पूरा फ्लड कर दिया था विद देयर ओरिजिनल मैप, शोइंग इट एज अ सिंबॉलिक रिबटल दैट वी वोंट गिव अप। सो दैट शोइंग सॉलिडारिटी इन difficult times should be applauded in my opinion. Yeah, exactly. And Trump also made remarks on Greenland too, that he openly threatened them if Denmark will give the Greenland to America lightly, or with the in case of war too, they will take it. मतलब ये तो काफी ज्यादा इनह्यूमन होता है कि तुम बस जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स एंड यू आर द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो तुम किसी भी छोटे देश को bully करो तुम्हें basically। ऐसे कर सकते, बुली करो। या एग्जैक्टली, सो उस पे क्या व्यूज है तुम्हारे? वो ऐसे बहाने बना रहा है कि वो मेन एक, वो पॉलिटिकल नहीं, मेन एक आर्मी लोकेशन है, वो उससे रशिया यूरोप का मेन लोकेशन है, वहाँ पे अपना आर्मी सेटअप बन जाता है ताकि फ्यूचर में कोई वॉर हो, जो बहुत आने चांस है, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन बन चुकी है वर्ल्ड में। अभी वेनेजुएला अटैक तो स्टार्ट है सिर्फ, इसी ना और भी बहुत कुछ होने वाला है। वहाँ पे अपने मिलिट्री प्रेजेंस बनाना चाहता है कि इनके जब फ्यूचर वॉर हो तो उसको एक एडवांटेज मिले, तो इसलिए इतने प्रेशर डाल रहा है ग्रीनलैंड पे। आर्कटिक में यूएस का ऑलरेडी मिलिट्री प्रेजेंस है, हम्म। एंड वो जस्ट बिकॉज रशिया के केस में, क्योंकि यूएस का अगर कंपटीशन देखा जाए तो रशिया ही है वॉर के सिनेरियो में जो कम्पीट कर सकता है। तो अगर हम देखें तो जो ग्रीनलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो यूएस एंड रशिया के बीच में आती है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी यूएस के लिए, इसीलिए जस्ट वो थ्रेटन कर रहे हैं उन लोग। ब्रो, एंड ग्रीनलैंड के इशू में बेसिकली ये आता है कि बहुत वहाँ पे अनडिस्कवर्ड रिसोर्सेज हैं, एंड एज डिस्कस्ड बाय तन्मय कि मिलिट्री पोस्ट वहाँ पे आप अच्छा बना सकते हो, एंड बिजनेस
एंड बिजनेस के लिए भी इट्स वेरी नाइस सेंटर, लेट्स से, जहाँ पे अगर कैप्चर कर लिया यूएस ने तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। एंड इसमें टैरिफ्स का एक हमारा और एग्जांपल आ जाता है। लाइक पहले भी हमने देखा है, ट्रम्प हैज यूज्ड टैरिफ्स एज अ नेगोशिएशन टूल, ठीक है, चाइना के साथ एंड आई थिंक मेक्सिको के साथ एंड बहुत सारी अदर कंट्रीज है कि तुम जो करना चाहते हो, जो मैं करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं होगा मैं तुम्हारे टैरिफ्स बढ़ा दूंगा, ठीक है। जस्ट अटर स्टुपिडिटी, ठीक है। एंड ये अभी भी वही कर रहा है। लाइक इंडिया के ऑलरेडी 50% कर दिए, हमारा धमकी है कि 500% कर देगा। ग्रीनलैंड वाले केस में ये है कि 1 फरवरी तक वो 15% तक कर देगा एंड 1 जून तक अगर वो जो चाहता है वो नहीं हुआ, इफ इट्स नॉट अंडर हिम, देन वो 25% तक टैरिफ्स ले जाएगा। सो ही इज बेसिकली abusing his power and abusing his बेसिकली अपना पावर अब्यूज कर रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी करूंगा जस्ट बिकॉज जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा। वेनेजुएला के साथ भी यही केस है। अगर इसे वो करना था, अगर मान लो वो वाला रीजन था ड्रग ट्रैफिकिंग वाला कि हमने इसे कैप्चर किया है क्योंकि गलत काम करता है, तो उसे सिर्फ कैप्चर कर लेते, ऑयल रिजर्व्स पे कैप्चर क्यों किया फिर? अगर ये यही पॉइंट था। जब वेनेजुएला का शायद मादुरो से पहले जो प्रेसिडेंट था, तो उसने मतलब जो पहले अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट करती थी वेनेजुएला में, उनको इतना ज़्यादा कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता था। बट जैसे ही वहाँ की, आई डोंट नो द ईयर एंड द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट जब उसकी लीडरशिप चेंज हुई थी तो उसने एकदम नेशनलाइज कर लिया था अपने ऑयल रिजर्व्स को, और जो भी सर्विसेज थे एंड जो भी कंपनीज ऑपरेट कर रहे थे वहाँ पे, उन पे ऑब्वियसली कुछ परसेंट टैक्स वगैरह लगाए थे। तो तभी से अमेरिका का वॉर वेनेजुएला से चल ही रहा था, वो नेगोशिएट करने का, अगर नेगोशिएट करने के लिए नहीं मान रहे तो वो दिख रहा था। एंड गाइस, अभी रिसेंटली एप्स्टीन फाइल्स का भी काफी ज्यादा केस आ रहा था जिसमें ट्रम्प का भी नाम आया था। तो एप्स्टीन फाइल का कोई ओवरव्यू देना चाहेगा एक बारी हमारे व्यूअर्स के लिए? So basically, Jeffrey Epstein was a very famous person, and he had an island, and basically that was rumored to be involved in child trafficking for sexually explicit reasons. And apparently, a huge number of celebrities that we know and love, they were involved in this scandal, and therefore it was kept under wraps for a long amount of time. Now, finally, these files have been released. However, there is still a lot of controversy behind them because most of the data that has been released in these files is still redacted. Basically, जो files हैं वो थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट है एंड देन इट इज कंप्लीट ब्लैक लाइंस, तो उसको डिसाइफर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड उस डिसाइफर करने के बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी इतनी यूजफुल नहीं है बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ बिट्स एंड पीसेस। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। एंड ये भी एक इशू है कि उन लोगों ने बोला था कि वो सारा जो डेटा है वो ढंग से देंगे, बट एंड इसके ऊपर शायद लॉ भी बना था आरटीआई का एप्स्टीन फाइल्स को लेके, बट वही है कि दे डिड नॉट एक्चुअली डू व्हाट दे प्रॉमिस दे वुड, which is Exactly. usually the case. Yes, there were a total of 300 GBs of data about this and 5.2 million documents. But what did they release? A portion of that, only 30,000 pages of documents, and most of that redacted. When some people found out the way to remove those redactions, what did they find out? Most of the names that were redacted were not due to the reason of victim blaming, of they were being victimized, or national security was on line. No, it was redacted due to them being embarrassed, their name being tarnished, which is currently very illegal as stated by the law. But they don't care who is going to punish them. They're just testing the law and seeing what they can get away with. Fair enough, fair enough. And इसकी irony ये थी कि नवंबर 25 में जो एक्ट का नाम था, that was Epstein Files Transparency Act, and the documents they disclosed and the files जो सामने है, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। अगर किसी ने कुछ गलत किया उसको बस उसको बस लिंक करके छोड़ दिया, उससे कोई एक्यूजेशन नहीं है उस पे, ठीक है। एंड इतने सारे नाम तो आए भी नहीं हमारे सामने। हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स ने सबीनाज इशू करे हैं, as तन्मय mentioned last time कि 4 बार हमने मतलब उन्होंने सबीनाज इश्यूज करे हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। Exactly. So transparency तो बस नाम की, हमें कुछ They'll make laws to reassure us, but then again when they'd have to actually act upon it, they'll just abuse their power blatantly, and then we'll just be left with whatever we had in the beginning. Exactly. Trump is using a political tool, as he told that he is going to release the Epstein files. But what did he release? Most of the photos of his opposition leaders,
and only a few photos and evidence that people related to him were even met or related to Epstein. The funny thing here is that people were expecting earlier that the name of Bill Clinton will be the most discussed one in the Epstein files, but the name of the Trump was highlighted much more than Bill Clinton. And earlier, at the times of general elections too, Trump was saying that he will release the Epstein files once he get elected. And after when he got elected, just he just neglected that. No, we'll do that. We'll मतलब नहीं करना. सो फिर जब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ देन ये सारे रिलीज हुए तो वही है कि हमारे ट्रम्प यहाँ तो अपनी बात मानेगा नहीं. स्टीफन हॉकिंग का नाम भी बहुत हाईलाइट हुआ था, इतने सारे मीम बने थे। एग्जैक्टली True. कंफर्म स्टीफन नहीं है, हॉकिंग कहते हैं फ्रॉम वही एप्स्टीन आइलैंड. कहते हैं सीमा Epstein वो गया था आइलैंड पे, कुछ कंफर्म नहीं, सिर्फ मीम्स बने थे। हाँ वही है, सो वही हाँ है कि बट एग्जैक्टली. ये भी बात सही है कि मतलब if these Epstein fill in the blanks as I like to call them, if it actually gets opened and fully transparently इसको निकालेंगे, then वही तो it would cause the entire world to go into ruckus, cause Right. a huge number of celebrities or people in power, they'll be exposed, and एक्सपोज। that would throw a huge wrench into the entire functioning of our world as a whole, because एग्जैक्टली. काफी बड़े-बड़े नाम है, ट्रम्प द प्रेसिडेंट ऑफ द यार मोस्ट बिल गेट्स का भी नाम था. वैसे तो ये तो पता नहीं लोगों को डेप्थ कितनी जाती है एप्स्टीन फाइल्स की। ये वर्ल्ड के और लीडर हो सकते हैं, पुतिन हो सकता है, इंडियन लीडर भी हो सकते हैं, तो हमें पता नहीं है। इनके पता चलता है वर्ल्ड तो पूरा ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर हिल डिसरप्ट हो जाएगा। जाएगा, एज मलान सेड, एग्जैक्टली बहुत एंड लार्ज द इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। इश्यू इज दैट अभी तो सिर्फ ये डेटा है जो इन्होंने बिल्कुल छुपा छुपा के हमें दिया है, एंड उसमें भी इतनी हॉरिफिक चीजें हमें पता लगी हैं। इमेजिन करो कि इसको पूरा ट्रांसपेरेंट करेंगे, सो अंदर इसके और कितनी डेप्थ होगी। अभी तो वी जस्ट नो अबाउट द चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वी डोंट नो अबाउट व्हाट एल्स दिस कुड एक्चुअली बॉयल एग्जैक्टली डाउन। हमें अब तक पता नहीं है कि एप्स्टीन ने अपने पैसे कहाँ से कमाए थे, हम तक ये पता नहीं यस, है। एंड हम बताए इसे एक और इंस्टेंस से कोरिलेट कर सकते हैं, जस्ट राइट माय माइंड, जो डिडी वाला हुआ था पूरा, ठीक है, उसमें एक एक करके इट्स सिमिलर येट डिफरेंट, या कि एक एक करके हमें और चीजें पता लग रही थी और लोगों के नाम आ रहे थे और वो हो रहा था, उसी में इतना बवाल हो गया था। सो आई थिंक दिस इज तो मच लार्जर देन व्हाट डिडी पार्टी, पता ना लोग डीडी पार्टी के बाद डिडी फैक्ट क्या है, उसके सामने लाइन पे लाइन केस आ रहे थे। इंडिया में क्या हुआ, हर एक केस को डिसमिस करा गया। उसे एक केस पे जेल होने का चांस था, उसको कंफर्म नहीं किया इन लोगों ने अब तक। कहते हैं थाउजेंड केस को उन्हें एक केस तक लेके आ गए, उन्होंने ठीक से उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया उस पर भी। वही तो मैं ये कह रहा था कि लाइक एक एक करके हमें इतनी चीजें पता चलती, शोज अस कि कितनी हॉरिफिक चीजें हो रही है, लाइक जितने सामने आता है उसी से लाइक इतना सब कुछ डिसरप्ट होने लगता है, इतने प्रोटेस्ट होते हैं, इतने होते हैं, तो जो सामने नहीं आता, इट्स लाइक आइसबर्ग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एंड These मतलब person- एक ये इशू है कि हमें इनके बारे में अभी एक चीज पता चली है, काफी और रूमर्स पहले भी फैलते थे जो शायद दबा दिए जाते थे या फिर उन पे इतनी बात नहीं होती थी। तो अब जब एक चीज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि हाँ ये बड़े बड़े लोग जो दुनिया चलाते हैं ये इसका पार्ट हैं, तो इससे हमारा एक व्यू पॉइंट चेंज नहीं होता अबाउट हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स, अबाउट हाउ मच हॉरिफिक थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग अराउंड, जो कि हम ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नाम पे उड़ाते रहते थे। अ लॉट ऑफ इट कैन बी एक्चुअली ट्रू। मैं ये नहीं कह रहा कि धरती फ्लैट है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि काफी चीजें जो कि हम सोचते थे कि नहीं हो सकती पॉसिबल, वो शायद असलियत में लोग करते हैं। एंड भाई हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब हम में से काफी लोग ही हमारे आइडल्स बनाए बैठे हैं कुछ लोगों को, मतलब जो भी बड़े बड़े नाम है बिजनेसमैन वगैरह, और वो भी काफी एंगेज हो सकते हैं गलत एक्टिविटीज में जो अब तक नहीं पता चला है। तो मतलब कैन बी रियली तो हॉरिफाइंग. ये पता है हमारी एक पुरानी वीडियो से कोरिलेट होता है जो हमने रिलीज नहीं करी थी एक्चुअली, कि रोल मॉडल वाली, कि नेपाल हमें हाँ हाँ नहीं रोल मॉडल वाली ना, कि हमें किसी को इतना भी रोल मॉडल नहीं बनाना हाँ चाहिए हाँ, कि अच्छा ये भी तो हाँ, था। हाँ हाँ उससे हाँ हाँ मैंने हाँ वो हाँ. चीज डाली नहीं थी, अरे तो उससे समय रैना रिलेट का एक मीम भी तो था. अरे समय रैना का एक मीम था कि उसने बोला था कि किसी पे बनाओ। हाँ मूवी मत बनाओ, क्या पता आगे कुछ कर दे. हो गए थे थोड़े बहुत सीन. तो वही है कि तुम किसी को अपना रोल मॉडल बना रहे हो तो ये अपना दिमाग खुला रखो भाई, कि कौन सी अच्छी चीजें सीखने वाली और कौन सी हाँ बुरी हैं, ठीक है, अच्छी चीजों अपने इंगल्ट करो और बुरी चीजों को अवॉइड करो, ये होता है बेसिकली, ऐसा नहीं किसी को अंधा फॉलो कर लो। तो गाइस हम ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं अभी कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं यूएस में, एंड तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? यार मैंने जितना देखा है वेनेजुएला अटैक का जो है, मैंने जितना रिसर्च किया था, दो इम्पैक्ट मुझे याद है, कि एक तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे, एंड उसकी वजह से जो मैं स्टॉक मार्केट का देखा हुआ कि
वैलिडेटेड कंपनीज है उनके स्टॉक्स गिरने वाले हैं थोड़े वो। एंड उसके अलावा ऑयल प्राइसेस काफी इंक्रीज होंगे क्योंकि हमारा एक मेजर इंपोर्ट वेनेजुएला से आता है, ठीक है, हमारा बहुत सारा इंपोर्ट भी नहीं आता है। कहते हैं, वो डिस्काउंटेड प्राइस में आता है। जब हाँ, अमेरिका उस डिस्काउंट, पे कंट्रोल कर लेगा तो हमें डिस्काउंट हटा देगा हमारे लिए, इसकी वजह से प्राइस बढ़ेंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड उसके अलावा एक और था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत आएगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बहुत आ सकता है। जो पहले इजीली चीजें हो जाती थी वो अब उतना आसानी से नहीं होंगी जितना पहले होती थी। तो वेनेजुएला अटैक का अगर हम करें, एंड टैरिफ्स का तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि उसने ऑलरेडी 50% कर दिया, तो वो गए, तो उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे बहुत फर्क आने वाला है। एंड एक मेजर चीज है जिसकी वजह से इमिग्रेशन एंड जो स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स हु सीक टू गो टू द यूएस, ठीक है, उनका फर्क आता है, विच इज द वीजा फीस, ठीक है। तो Actually, मैं थोड़ा सा एक बेस बना देता हूँ, मैं मतलब बता देता हूँ कि H1B वीजा जो वर्किंग वीजा होता है उस पे $100,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 90 लाख रुपीस, ठीक है, 90 लाख रुपए की फीस उसने करी है कि जो न्यू एप्लीकेंट्स होंगे 2025 में उन्हें 90 लाख की देनी होगी। एंड And टूरिस्ट वीजा पहले पे भी की Technically, comparison, they paid that company that they're going to work at, not themselves. So वही, only super highly skilled people are going to immigrate to US. So only people who are worth it can go to US and company will pay for them. Else most low level jobs and workers that are currently working in US won't be able to work anymore. That's the main point. एंड ऐसा सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो टूरिस्ट वीजास भी होते हैं, मैं आई वाज चेकिंग द प्राइसेस ऑन अ वेबसाइट, ठीक है, उसमें अभी लाइक 17,200 वीजा फीस है सिर्फ, ओनली द वीजा फीस जो एम्बेसी के पास जाती है, वो दैट विल इंक्रीज टू 40,000 विच इज मतलब $250 का इंक्रीज होगा उसमें, सिर्फ इंटेग्रिटी फीस, तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया प्राइस। टूरिज्म के लिए भी आपको वहां जाके काम नहीं, अगर आपको घूमने भी जाना है सिर्फ, तो भी आपको ऑलमोस्ट डबल पैसे देने होंगे, एंड ऊपर से सर्विस प्रोवाइडर की भी फीस होती है, so बहुत doesn't that सारी thing चीजें। can backfire them कि अगर वो टूरिस्ट वीजा भी कर रहे हैं तो इंडियंस जो भी सारे उनके पास जाते हैं तो या तो फिर उससे इम्पैक्ट भी आ सकता है, बट देन अगेन यूएस इज अ वेरी बिग इकोनॉमी that's also एंड इट्स नॉट लाइक कि ही इज एग्जैक्टली थिंकिंग पूरा अच्छे तरीके से, ही इज नॉट थिंकिंग दिस थ्रू, मतलब वी कैन टेल कि ही इजंट। अगर तुम वो ग्रीनलैंड वाला देखो भी, इट doesn't really seem very professional. It seems कि it has been written by a child. तो या तो इसके दो कंक्लूजन निकल सकते हैं कि या तो ट्रम्प एकदम ही स्मार्ट है, डेढ़ शाना है, कि भाई वो कोई ऐसी चाल चल रहा है जो रिवील होगी कुछ सालों बाद एंड पूरे दुनिया के चक्षु खुल जाएंगे। सो हमने इंडिया के इम्पैक्ट डिस्कस कर लिए कि ऑयल प्राइसेस पे आएगा एंड स्टॉक मार्केट्स पे काफी इम्पैक्ट होता रहता है, जो भी यूएस में होता है, यूएस मार्केट्स में तो ऑब्वियसली होता है, बट उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी काफी लार्ज एक्सटेंट तक होता है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, ट्रम्प की जो रिसेंट पॉलिसीज आई हैं एंड रिगार्डिंग टैरिफ्स, रिगार्डिंग द वीजा फीस एंड रिगार्डिंग इमिग्रेशन, एंड जो वो कैप्चर करने का सोच रहा है वेनेजुएला एंड ग्रीनलैंड का, एंड व्हाट ऑल हैज हैपेंड, हमने डिस्कस किया। एंड या सो हमारा बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि ट्रम्प नीड्स टू ग्रो अप he's so he's basically needs to grow up a little and थोड़ा थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए चीजें। okay guys, so that's it for today's Trump Tales. We'll see you all in the next episode. Till then, stay tuned, subscribe to our channel and drop a comment. Until next time, Chai Vichar signing off. बाय, चार विचार साइनिंग। Char Chai Vichar. signing off. Bye.